blood is a fluid connective tissue, and the average amount of blood in anybody is approximately 8% of his body weight. Suppose a person is of 70 kg, then he will be having approximately 5.6 liter of blood. The specific gravity of blood is 1.055 to 1.065. Viscosity is 5 times that of water. And pH is around 7.35 to 7.45. Osmolarity is around 300 milliosmoles and salinity is 0.9%. Color of blood, as everybody knows, that it is bright red to deep red. Coming to the components of the blood, if we withdraw blood and centrifuge it, then we can see in the slide that the uppermost part will be plasma, which comprises almost 55% of the whole blood. And in between, there is a buffy coat, which consists of leukocytes and platelets. And this is almost less than 1% of whole blood, the buffy coat. And in the bottom, in the tube, it is 45% of whole blood, which is erythrocytes. So 45% is almost erythrocytes, means red blood cells. 1% or less than 1% is buffy coat, which consists of leukocytes and platelets. And the uppermost part is plasma, which comprises almost 55% of the whole blood. So in males, hematocrit is around 47% plus minus 5%, and in females, it is 42% plus minus 5%. So we can divide the components of blood composition of blood we can divide into 5% is plasma and 55% is almost other cells. In plasma, out of 55%, 90% is water, and the left one 10% is solids and gases. Among the cells of red blood, it consists of WBC, means white blood cells, red blood cells, and platelets. White blood cells comprises almost, there is a range in most of the persons and adults. It ranges from 4,000 to 11,000 per millimeter cube of blood. So on an average, you can say that white blood cells are around 4,000 to 11,000 per millimeter of cube of blood in normal patients. And red blood cells consist of it comprises of almost 4.8 to 5.4 million per millimeter cube, and platelets ranges from 1.5 to 4 lakhs per millimeter cube. So these are the composition of blood. Plasma 55% and 45% are cells. In cells, it comprises of white blood cells, red blood cells, and platelets. Now coming to plasma, the composition of plasma is almost 90% it is water, and the other 10% comprises of ions, organic molecules, trace elements, and vitamins. There is a very small amount of gases, which are most of the times it is carbon dioxide and oxygen. And organic molecules consist of amino acids, proteins, glucose, lipids, nitrogenous waste. And in amino acids and protein comprises almost most of the times it is albumin, globulin, or fibrinogen. So the blood consists of plasma 55% and 45% of cells. The cellular component, as we have discussed, that it is either या तो ये white blood cells होते हैं, red blood cells होते हैं, या platelets होते हैं. Red blood cells को हम लोग erythrocytes भी बोलते हैं. White blood cells जो होते हैं उनमें हम लोग जो है दो तरीके के सेल्स होते हैं, जिसमें एक तो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं और जिसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, और एक जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं. जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं वो है लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, और बाकी तीन जो है न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स में क्या होते हैं, दीज आर ग्रेनुलोसाइट्स. इसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं. आप देख सकते हैं इस डायग्राम में या इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स में ग्रेन्यूल्स नहीं है, जबकि न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स में आप देख सकते हैं डॉट डॉट है चारों तरफ सेल्स के. Throughout the cells there are dots, multiple dots,
That's why they are called granulocytes. So 55% is out of the whole blood consists of 55% plasma and 45% cellular components. The cellular components are having red blood cells, white blood cells, and platelets. We have discussed about white blood cells कि white blood cells पांच तरीके के होते हैं: lymphocytes, monocytes, neutrophils, eosinophils and basophils. इसमें फिल्स लगे हुए आप देख सकते हैं कि वो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, मतलब उसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो हम उसको फिल्स बोलते हैं: न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स. सो आउट ऑफ हम लोग अब प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में लगभग 90% वाटर होता है और रेस्ट सॉलिड्स 10% होते हैं. इन सॉलिड्स की बात करें तो 10% सॉलिड्स में प्लाज्मा प्रोटीन्स एक मेजर कंपोनेंट होता है. इट इज अराउंड 6 to 8 ग्राम पर डेसीलीटर. इनमें प्लाज्मा प्रोटीन्स में क्या होते हैं? एल्ब्यूमिन होते हैं, सभी लोगों ने सुना होगा एल्ब्यूमिन के बारे में. दूसरा कंपोनेंट होता है इन्हीं प्लाज्मा प्रोटीन्स में ग्लोबुलिन. एल्बुमिन, नेक्स्ट इज ग्लोबुलिन एंड द थर्ड वन इज फाइब्रिनोजन. ये तीनों प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं हमारे ब्लड में. दूसरे कंपोनेंट सॉलिड कंपोनेंट्स क्या होते हैं? रेगुलेटरी एंड प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स होते हैं, जिनमें की हार्मोन्स, एंटीबॉडीज एंड एंजाइम्स आते हैं. हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, एंजाइम्स ये भी क्या होते हैं? हमारे ब्लड के सॉलिड कंपोनेंट होते हैं या प्लाज्मा के सॉलिड कंपोनेंट होते हैं. थर्ड वन इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. इसमें क्या क्या होते हैं? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में वेस्ट मटेरियल होते हैं, कुछ कुछ न्यूट्रिटिव मटेरियल होते हैं और कुछ आयंस होते हैं. तो प्लाज्मा आप देख सकते हैं कि 90% वाटर होता है, रेस्ट सॉलिड. सॉलिड में भी हम लोगों ने देखा कि ज्यादातर क्या होते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, या तो रेगुलेटरी प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स होते हैं, और कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि वेस्ट मटेरियल, न्यूट्रिटिव मटेरियल एंड आयंस होते हैं इसमें. फंक्शन, ब्लड के फंक्शन की बात करें तो फर्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव. पहला क्या काम है फंक्शन ब्लड का? डिस्ट्रीब्यूटिव. हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है कि ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है. तो इसमें होता क्या है? डिस्ट्रीब्यूट, पहला फंक्शन क्या है ब्लड का? कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन. डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट करता है. क्या डिस्ट्रीब्यूट करता है? इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम जीआईटी एंड बॉडी स्टोर्स टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी. मतलब ये लंग्स से ऑक्सीजन को लेके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है. और क्या डिस्ट्रीब्यूट करता है? न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है. न्यूट्रिएंट्स को कहां से डिस्ट्रीब्यूट करता है? हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से, हमारे इंटेस्टीन से. क्या करता है ये? कि न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है और डिफरेंट बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव. ब्लड इज हैविंग डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन. किस किस चीज का डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है लंग्स से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, और न्यूट्रिएंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है टू डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी. और क्या करता है डिस्ट्रीब्यूटिव? दूसरा फंक्शन क्या है? इट कैरीज वेस्ट फ्रॉम ऑल सेल्स. सभी सेल से वेस्ट को कैरी करता है टू इलिमिनेट, टू इलिमिनेशन साइट्स. कहाँ कहाँ इलिमिनेशन साइट कहाँ कहाँ हो सकता है? लंग्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड. लंग्स की तरफ ले जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए. लिवर फॉर बिलिरुबिन एंड किडनीज फॉर नाइट्रोजनस वेस्ट. नाइट्रोजनस वेस्ट के लिए किडनीज की तरफ, और लिवर की तरफ कहां से? बिलिरुबिन. बिलिरुबिन को लिवर की तरफ. कैरीज हार्मोन्स. और क्या करता है? दूसरा फंक्शन क्या है ब्लड का? इट कैरीज हार्मोन्स. इसमें क्या होता है? डिफरेंट हार्मोन्स, हमारे केमिकल सिग्नल्स जो होते हैं हमारे बॉडी में, हार्मोन्स जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि हमारे इंडोक्राइन ऑर्गन से निकलते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्मोन बोलते हैं. ये हार्मोन क्या होते हैं? दीज आर केमिकल सिग्नल्स फ्रॉम इंडोक्राइन ऑर्गन्स टू टारगेट टिश्यू. हमारे इंडोक्राइन ऑर्गन्स जितने होते हैं, वहां से हार्मोन्स जो निकलते हैं वो ब्लड के थ्रू डिफरेंट बॉडी टिश्यूज में, टारगेट टिश्यूज की तरफ जाते हैं. सो ब्लड इज हैविंग दिस फंक्शन एज वेल, कि ये हार्मोन्स को भी हमारे इंडोक्राइन ऑर्गन से टारगेट टिश्यूज की तरफ ले जाते हैं. दूसरा क्या है? रेगुलेटरी फंक्शन. पहला हम लोग ने देखा डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन है. दूसरा है रेगुलेटरी फंक्शन. क्या रेगुलेट करता है भाई हमारे बॉडी का? इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर. हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है बाई एब्जॉर्बिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग हीट. हीट को एब्जॉर्ब करके और हीट को डिस्ट्रीब्यूट करके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ताकि ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सके. और क्या रेगुलेट करता है?
पीएच बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मैनी बफर्स, इसमें ढेर सारे बफर्स होते हैं ब्लड में, जिसके कारण हमारे बॉडी का पीएच मेंटेन रहता है। ये पीएच को भी मेंटेन रखता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, एंड मेंटेन्स एडिक्वेट फ्लूइड वॉल्यूम इन द बॉडी। हमारे बॉडी में कितना फ्लूइड होना चाहिए, फ्लूइड वॉल्यूम कितना होना चाहिए, वो भी हमारे जो वेसल्स में ब्लड होती हैं, ब्लड हमारे बॉडी में वेसल्स वेसल्स में जो ब्लड होती है, जितना का वॉल्यूम होता है, वो क्या करता है, हमारे बॉडी के डिफरेंट फ्लूइड्स को भी मेंटेन करता है। तीसरा क्या फंक्शन है, पहले हम लोगों ने देखा डिस्ट्रीब्यूटिव, दूसरा है रेगुलेटरी फंक्शन। क्या रेगुलेट किया, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट किया, बॉडी के पीएच को मेंटेन किया, बॉडी के फ्लूइड वॉल्यूम को मैनेज किया, रेगुलेट किया। तीसरा है प्रोटेक्टिव फंक्शन। क्या प्रोटेक्ट करता है, ब्लड हमें कैसे प्रोटेक्ट करता है, इट प्रिवेंट्स ब्लड लॉस बाय इनिशिएटिंग क्लॉटिंग मैकेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू ब्लड वेसल डैमेज। अगर किसी ब्लड वेसल में डैमेज हो जाता है तो ब्लड क्या करता है, क्लॉटिंग मैकेनिज्म को इनिशिएट कर देता है, उसको एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण ब्लड लॉस होने में क्या होता है, ब्लड लॉस होने से रोका जा सकता है। तो इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि क्लॉटिंग मैकेनिज्म में क्या करते हैं, वो उसको एक्टिवेट कर देते हैं, और ब्लड वेसल्स जो है, ब्लड वेसल्स उसी तरीके से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और ब्लड लॉस को हम लोग मैनेज कर सकते हैं कि ब्लड लॉस ज्यादा ना हो, ताकि हमारे ब्लड बॉडी का वॉल्यूम मैनेज रहे, टेम्परेचर मेंटेन रहे, पीएच मेंटेन रहे। ठीक है। इट प्रिवेंट्स इन्फेक्शन वाया डब्ल्यूबीसीज एंड प्लाज्मा इम्यून प्रोटीन्स। हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या करता है, इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं। ये व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे को हमें क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं। कैसे प्रिवेंट करते हैं भाई, अगर हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में ब्लड के थ्रू या इस तरीके से इंटर कर जाते हैं, वायरसेस इंटर कर जाते हैं, बैक्टीरिया या जो भी इस तरीके के इन्फेक्शियस एजेंट है वो इंटर कर जाते हैं, तो उसको व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, उसको प्रिवेंट करते हैं। कई बार उनको इनगल्फ कर लेते हैं, उनको किल कर देते हैं, सो दैट वी आर प्रिवेंटेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन। और हमारा क्या होता है, इम्यून सिस्टम भी हमारा क्या होता है, ब्लड के थ्रू ही मेंटेन होता है। प्लाज्मा इम्यून प्रोटीन्स होती हैं इसमें, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे प्रतिरोधक क्षमता को ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो ब्लड का क्या होता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन भी होता है। पहला तो ब्लड क्लॉट कर दिया, दूसरा है इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर दिया, हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया, जिसके कारण हमें इन्फेक्शन नहीं होता है। अगर हम लोग ब्लड को सेपरेट करते हैं तो क्या होता है, सेपरेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स हम लोग डिफरेंट टाइप से करते हैं, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे, मॉलिक्यूलर साइज के बेसिस पे। और इन दोनों तरीके से हम लोग क्या करते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स को, प्लाज्मा प्रोटीन्स हम लोगों ने पढ़ा था कौन कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन्स थी, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन मेजर प्रोटीन्स थी, और फाइब्रिनोजन भी होता है। ठीक है। एम आई क्लियर टू एवरीवन, मेरी बात समझ में आ रही है सबको, ब्लड कंपोनेंट सबको समझ में आया, क्या क्या होता है ब्लड, क्या होता है ब्लड कंपोनेंट्स, क्या होते हैं ब्लड का, क्या फंक्शन होता है, ये सबको समझ में आ रहा है। एनीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। अब हम लोग पहले जो है जो है हमारे बॉडी में जो ब्लड में प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन पार्ट है, उसमें क्या है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट एल्बुमिन है। एल्बुमिन लगभग 60% ऑफ टोटल प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। तो मेजर प्लाज्मा प्रोटीन हमारे बॉडी में कौन सा है, प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है, एल्बुमिन है। इट कंप्राइजेस ऑलमोस्ट 60% ऑफ टोटल प्लाज्मा प्रोटीन्स, एंड 40% इंट्रावास्कुलर एंड 60% एक्स्ट्रावास्कुलर केयर फॉर्म में होता है। मतलब हमारे वेसल्स के अंदर ब्लड में 40% होता है, बाकी 60% एक्स्ट्रावास्कुलर होता है। इसका हाफ लाइफ लगभग 19 डेज होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 66,000 डाल्टन होता है। इसका शेप एलिप्सॉइड होता है, और कैटाबॉलिज्म रिसेप्टर मेडिएटेड ट्रांससाइटोसिस एंड देन पिनोसाइटोसिस के द्वारा डिफरेंट टिश्यूज में होता है। फंक्शन क्या होता है एल्बुमिन का, फंक्शन क्या होता है, ये हमारे बॉडी में अ, हमारे प्लाज्मा में क्या होता है, मेजर प्रोटीन होता है, जो कि देख सकते हैं कि आप इसके कारण क्या होगा, फंक्शन क्या हुआ, इट रेगुलेट्स ब्लड वॉल्यूम एंड
बॉडी फ्लूइड बैलेंस, ये क्या करता है, हमारे ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करता है, बॉडी के फ्लूइड का बैलेंस ही मेंटेन करता है, विस्कोसिटी मेंटेन करता है, विच इज वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो। ठीक है, हमारे ब्लड का जो विस्कोसिटी होता है उसका मेजर पार्ट जो होता है एल्बुमिन के कारण होता है, विच इज वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ रेजिस्टेंट टू ब्लड फ्लो। ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस भी एल्बुमिन का एक मेजर फंक्शन होता है। और प्रोटीन रिजर्व का फॉर्म, ये जो है एल्बुमिन एक्ट्स एज ए प्रोटीन रिजर्व है एज वेल। और क्या होता है, बाइंडिंग टू वेरियस लिगेंड्स हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्री फैटी एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करने में, बिलिरुबिन को ट्रांसपोर्ट करने में, कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट करने में एल्बुमिन का हेल्प होता है। सेकेंडरी कैरियर फॉर थायरॉक्सिन, कॉर्टिजोल एंड हेमी। कॉर्टिजोल, थायरॉक्सिन और हेमी को भी के लिए भी क्या होता है, कैरियर का फॉर्म में काम करता है एल्बुमिन। ड्रग बाइंडिंग के फॉर्म में, ड्रग बाइंडिंग में भी क्या होता है, ड्रग से बाइंड करता है, जैसे सल्फोनामाइड्स, पेनिसिलिन जी, एस्पिरिन, इन सब से क्या करता है, एल्बुमिन बाइंड करता है। और बफरिंग एक्शन भी होता है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग पीएच ऑफ द ब्लड। ब्लड का पीएच कैसे मेंटेन होता है, एक मेजर फंक्शन होता है एल्बुमिन का कि भाई वो ब्लड के पीएच को भी मेंटेन करता है। अगर वेरिएशन हो जाता है, क्या क्या वेरिएशन हो जाता है प्लाज्मा में, हमारे ब्लड में एल्बुमिन का क्या क्या वेरिएशन हो सकता है, एक तो इंक्रीज हो सकता है हमारे ब्लड में, ये प्लाज्मा में कैसे एल्बुमिन इंक्रीज कर सकता है, बिकॉज ऑफ सेकेंडरी टू बर्न्स। कभी देखिए कभी बर्न वगैरह हो जाता है, कभी अ, जल जाता है, कह लीजिए आपका स्किन या ऑर्गन या बॉडी, हमारे कहीं कोई भी बॉडी पार्ट जल जाता है, बर्न हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, उस समय क्या होगा, एल्बुमिन का, प्लाज्मा एल्बुमिन का कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में इंक्रीज कर जाता है। दूसरा कंडीशन हो सकता है कैसे डिक्रीज कर जाए, डिक्रीज करने की कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं, इन्फेंट्स एंड न्यूबॉर्न्स में ये एल्बुमिन का, प्लाज्मा एल्बुमिन का कंसंट्रेशन कम होता है। प्रेगनेंसी के समय डाइल्यूशन के कारण क्या होता है, एल्बुमिन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। हेपेटाइटिस के समय किसी को हेपेटाइटिस हो जाता है, लीवर का इन्फेक्शन हो जाता है, सिरोसिस हो जाती है, या नेफ्रोसिस हो जाती है, या प्रोटीन लूजिंग एंट्रोपैथीज, कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती है जिसके कारण हमारे बॉडी का प्रोटीन लॉस होने लगता है, उसमें भी क्या होगा, प्लाज्मा एल्बुमिन का लेवल हमारे बॉडी में कम हो जाता है। ठीक है, दूसरा होता है अल्फा ग्लोबुलेंस। दूसरे प्रोटीन क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन ग्लोबुलेंस, उसमें क्या है, अल्फा ग्लोबुलेंस, अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन, एंटी थ्रोमिन 3, एंटी प्लाज्मिन, सेरुलोप्लाज्मिन, हेप्टोग्लोबिन, ये सब क्या होते हैं, ये ग्लोबुलेंस होते हैं, अल्फा ग्लोबुलिन। दूसरा है बीटा ग्लोबुलेंस होते हैं, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, हीमोपैक्सिन, प्लाज्मिनोजेन, ये सब क्या है, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, ट्रांसफरिन, दीज आर बीटा ग्लोबुलिन्स। फंक्शंस क्या होते हैं अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन्स के, कैरियर प्रोटीन फॉर थायराइड हार्मोन इन ब्लड, इनहिबिटर ऑफ सीरीन सीरम इंडोप्रोटीएज, इट ट्रांसपोर्ट्स कॉपर, कॉपर को ट्रांसपोर्ट करने में सेलुलोप्लाज्मिन का काम आता है, ट्रांसपोर्ट्स फ्री हीमोग्लोबिन को ट्रांसपोर्ट करने में, ट्रांसपोर्ट्स आयरन, प्रिकर्सर और फाइब्रिन, ये सब क्या है, फंक्शंस ऑफ अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन्स, जो कि एक दूसरा मेजर प्रोटीन है हमारे ब्लड में, या दूसरा मेजर प्लाज्मा प्रोटीन है अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन। अब हम लोग आते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेलुलर एलिमेंट्स ऑफ ब्लड। जो भी सेलुलर एलिमेंट्स हैं, हम लोगों ने सेलुलर एलिमेंट्स में क्या क्या पढ़ा, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स आर द सेलुलर एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड। फीटस की बात करें, फीटस में क्या होता है, एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोइसिस होती है 3 स्टेजेस में, मीजोप्लास्टिक, हेपाटिक एंड माइलोइड। बोन मैरो इज द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ऑल फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड आफ्टर बर्थ। के बाद क्या होता है, बोन मैरो जो है वो साइट होती है फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑल फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड। हमारे ब्लड में जितने व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स हैं, ये सब बोन मैरो में इस तरीके से बनने, ये देखिए बोन मैरो है, ये लॉन्ग बोन है, कह लीजिए कि ये फीमर वगैरह को भी देख सकते हैं, ये ह्यूमरस है, ये सब में क्या होते हैं, बोन मैरो होता है, सेंटर पे मैरो कैविटी होती है। एक कॉम्पैक्ट बोन है, पेरियोस्टियम होता है, पेरियोस्टियम पेरिफेरल जो है एरिया होता है उसका, पेरियोस्टियम।
आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, कैंसलस बोन होती है, एपिफाइसियल प्लेट होती है यहाँ पे बर्थ। रेड बोन मैरो क्या होता है? रेड बोन मैरो में क्या होगा? रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये मैरो से क्या करते हैं? रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, इस तरीके से आप देख सकते हैं। दीज आर रेड ब्लड सेल्स, दीज आर व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स हमने बताया 5 तरीके के होते हैं, दो मेजर टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं उसमें क्या आते हैं? इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स, इसमें फिल्स लगे रहते हैं। दूसरे कंपोनेंट होते हैं लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। और तीसरा कंपोनेंट क्या होता है ब्लड का? सेलुलर कंपोनेंट होता है प्लेटलेट। दिस प्लेटलेट रेंजेस फ्रॉम, जबकि